Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be doing the paper analysis of English language paper for class 12 ISC. This is the document that is issued by the council and it is a paper of 2025 examinations, means this year. Okay, so we'll be having a very detailed analysis of this paper in which the council itself tells ki what are the mistakes that you all should not do. So I would like to share few things in this document. First, the maximum marks that the person has got, any one candidate or two or many would have got is 100. Means ऐसा नहीं कि you cannot get those many marks. ठीक है. So now we will take the qualitative analysis of the paper. Attempt all 4 questions. This you all know, means you have to attempt whatever the question gives you. First question, that is about the composition, that was about 400 to 450 words, and you have to do the paper according to the orderly and coherent presentation, use of appropriate style, whether formal, informal, general accuracy of spelling, punctuations and grammar. All these things are to be kept note of. ठीक है, तो इसी में जो सबसे पहला क्वेश्चन था, दिस इज दैट वाज द चाइल्ड्स लाइब्रेरी, द चिल्ड्रंस लाइब्रेरी इन योर ओल्ड लोकेलिटी वाज इन अ नेग्लेक्टेड कंडीशन. You and your friends visited it recently and decided to do something about it. What did you see there? अब यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको सबसे पहले समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा काइंड ऑफ ऐसे है. दिस इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे. ठीक, मैनी मतलब एक ईजी अप्रोच होती है अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज पूछा गया है स्पेसिफिक चीज़ें, आपको वो स्पेसिफिक चीज़ें ही डिस्क्राइब करनी है, बट इट शुड बी इन योर ब्यूटिफुल लैंग्वेज. द काइंड ऑफ वोकेबलरी यू यूज़, तो यहाँ पर बोला गया है कि यू विजिटेड अ लाइब्रेरी एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग टू इट. वट डिड यू सी देयर? हाउ डिड यू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज? आपने वहाँ क्या देखा, आप उसमें क्या चेंजेस लाए. यू हैव टू डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट व्हेन यू वर सपोज टू री ओपन दैट लाइब्रेरी एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन मेनी चिल्ड्रन बिगैन टू विजिट इट इवेंचुअली. तो आपको कैसा लगा. ठीक है, तो इसमें जो फ्यू थिंग्स दैट द काउंसिल एक्सपेक्ट्स कि कैंडिडेट लिखेगा क्या, पहले वो सुनो, उसके बाद वी विल डिस्कस कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं दैट द पीपल दैट योर सीनियर्स मे हैव डन एंड यू शुड नॉट रिपीट. तो सबसे पहले यहाँ पर है दैट दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक. ओके, डिस्क्रिप्टिव ऐसे. व्हाट दे सॉ ऑन देयर रीसेंट विजिट टू द लाइब्रेरी. यू मस्ट मेंशन द नेग्लेक्टेड कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी. आपने जब आपने विजिट किया, जाहिर सी बात है आप किसी चीज़ को सही करने के लिए जा रहे हो तो कोई चीज़ ख़राब होगी, तो यू हैव टू मेंशन कि क्या वहाँ पर ख़राब था. द स्टेप्स दे टुक टू ब्रिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस, वट वर द थिंग्स दैट यू डिड. ठीक, वन बाय वन यू कैन मेंशन. एक्साइटमेंट, द कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस दे वी आई फेल्ट वेन मैनी चिल्ड्रन बिगैन टू विजिट द लाइब्रेरी. तो उनको कैसा फील हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें मैंशन करनी है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट जहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्टिव मतलब द मिस्टेक्स और द कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर्स हैं जो आपको समझने चाहिए, दैट यू शुड नॉट डू व्हेन यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग द ऐसे. The essay prompt required the candidate to discuss about the children's library. ठीक, they had to describe the condition, what they observed and how it brought a significant change. Then they needed to express the excitement surrounding. However, candidates, what were the issues? तो they failed to include the crucial words जैसे कि library, neglected condition, reopening day. So these were the terms that were supposed to be used that was not used. Take some also overlooked essential subsections such as the steps they took to bring about the change and their emotions when the children started visiting the library again. तो उनके क्या emotions थे, how did they feel, they were happy, they were excited, ये सारी चीज़ें were, all these things were supposed to be mentioned which was not mentioned. Okay, then next question that we will do now is the, अब ये topic जो है the analysis of this, why I have taken it right now, just because कि I know कि अब या तो आपके pre boards इस time पर, like today is 14th December 2025
एंड अभी इधर योर एग्जाम्स वुड बी द प्री बोर्ड्स वुड बी ओवर, वुड बी मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, और हो सकता है कि अभी वो उसी ड्यूरेशन में ही हो, ठीक है। तो इस टाइम तक यू हैव डेल्ट विथ 1, 2 और मे बी मोर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या हर बार ऐसे होता है, देर आर पीपल हु आस्क, इफ़ आई एम ऑल्सो एज अ स्टूडेंट, इफ़ आई थिंक, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि वाई द पर्सन द एग्जामिनर इज़ नॉट गिविंग मी फुल मार्क्स और इवन द मैक्सिमम मार्क्स दैट आई कैन एक्सपेक्ट इन द ऐसे। तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो कि हाँ आपको ये चीज़ें उसमें अटेम्प्ट करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं अटेम्प्ट करनी है। ओके, यू द नेक्स्ट वन, यू डिपेंडेड ऑन टेक्नोलॉजी टू complete an important task, however it failed at a crucial moment। आप किसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे कि कोई इंपॉर्टेंट टास्क था करने का, इवन चलो ठीक है, जैसे हम नॉर्मल भी कह सकते हैं कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन आईएससी, सो द मैटर इज़ कि हम उस पर निर्भर थे, कोई इंपॉर्टेंट टास्क, सपोज करो मेरा एग्ज़ाम ही था, however it failed at a crucial moment, narrate what happened, how your attempts to fix it and the lessons you learned from this experience। तो इससे आपने क्या लेसन लर्न किया, दिस इज नरेट व्हाट हैपेंड ना, तो दिस इज योर नैरेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव से ही कैसे डिफरेंट होता है, यहाँ पर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हो, वहाँ पर आपका जो एम्फेसिस होता है वो डिस्क्राइब करने पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को नहीं डिस्क्राइब करूँगी अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ या फिर फ़ोन की बात कर रही हूँ। सपोज़ आप बाहर कहीं गए हो, आपने सोचा कैब से बुक कर देंगे, ठीक है, कैब नहीं मिल रही है वहाँ पर, कैश यू आर नॉट हैविंग, सपोज करो कि आपको पेमेंट करना हो, कैश नहीं है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो हेयर यू आर एक्सप्लेनिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, नरेट कर रहे हो आप उस पूरे इंसिडेंट को, आप किसी एक चीज़ को पकड़ के उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो कि हम लाइब्रेरी डिस्क्राइब करेंगे, उसकी अच्छी कंडीशन बुरी कंडीशन डिस्क्राइब करेंगे या पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, तो दिस थिंग्स वी आर नॉट डूइंग इन नैरेटिव एसेज। ओके, हाँ, आई शुड ऑल्सो मैंशन काउंसिल ने इस बार 2026 के इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं इशू किया है स्पेसिमेन, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि 2025 का जो पेपर है उसको देखो, स्पेसिमेन पेपर को, इसको देखो, दैट इज़ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनते हैं। ओके, बिकॉज स्पेसिमेन पेपर्स इंग्लिश लैंग्वेज में तो दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग सेम। येस, दिस इज़ अ नैरेटिव टॉपिक। Candidates must begin by narrating the incident when the technology failed, must be in the first person, that is I, okay, or we। Second thing, elaborate on their attempts to fix it। आपको ये बताना है कि हाँ कैसे आपने उसे फिक्स किया, एटलीस्ट वन अटेम्प्ट मस्ट बी इलेबोरेटेड, एक्सेप्ट द हेल्प टेकन बाय समवन एल्स, किसी और से हेल्प लिए उसको छोड़ के आपको खुद का भी अटेम्प्ट बताना है। दे शुड ऑल्सो राइट अबाउट द लेसन्स दे लर्न, अगेन इन द फर्स्ट पर्सन, आई वी एक्सपीरियंस, एक्सेप्ट अ कॉम्पोजिशन दैट रेफर्स टू द स्टोरी, देयर विल कम सम सॉफ्टवेयर्स पार्शली और एंटायरली, एक्सेप्ट अ कॉम्पोजिशन दैट रेफर्स टू द स्टोरी, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी टेकन, ठीक है, ये भी हम इसको एक कॉम्पोजिशन के फॉर्म में उसको भी हम ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक आपने स्टोरी पढ़ी है तो पार्शली और एंटायरली यू कैन यूज़ द टर्म्स देयर, कि हाँ वो भी एक टेक्नोलॉजी थी और उसमें भी ग्लिचेस आ रहे थे टेक्नोलॉजी में, तो दैट यू कैन टेक अप। ओके, अब यहाँ पर द नैरेटिव एसेज, अब कुछ चीज़ें थी ना इसमें, कुछ सब पार्ट से दैट यू वर सपोज टू इलेबोरेट ऑन, ठीक है। तो फ्यू कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड दिस, what were the issues? The most candidates focused primarily on the word technology, failed to discuss their attempts to fix the issue। आप टेक्नोलॉजी वर्ड अगर यूज़ कर रहे हो तो टेल ना कि what you have taken, your phone has gone means it is into trouble, or your calculator is in trouble, or the watch, or anything you are taking, कुछ तो होगा, तो वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। बार बार टेक्नोलॉजी वर्ड शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन, विच रिजल्टेड इन लोअर स्कोर्स ऑल्सो, मतलब आप अटेम्प्ट करो उसको फिक्स करने का, तो ये भी आपको बताना है विच वॉज नॉट टेकन अप, ठीक है। कभी भी कोई भी ऐसे पढ़ा करो, उसको 4 बार पढ़ो जो अटेम्प्ट करना है आपको, और फिर देखो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। देन द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन,
film stars are good role models for youngsters. Either you will write for or against the topic, that is the argumentative essay. ओके, तो दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव. आपको या तो फॉर में लिखना है इसके या फिर अगेंस्ट में लिखना है. चलो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि काउंसिल आपसे क्या बोल रहा है कि क्या उसमें करना है. दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक. यू आर सपोज टू प्रेजेंट ईदर फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक. At least 4 distinct arguments must be provided. Implied stance to be accepted. मतलब कि उसके बाद ये हुआ, these things can also be acceptable. The examples that you are giving are also acceptable, but solid arguments आपके पास होने चाहिए, at least 4. Okay, अब इसका हम merits and मतलब the comments of the examiners also I should see. Many candidates. ये जो पोर्शन है ना, दिस वी विल डू लेटर कि व्हाट द काउंसिल सजेस्ट यू, वो हम लोग बाद में करेंगे. मेनी कैंडिडेट्स आंसर्ड वेल. ठीक है. हाउएवर, नाउ सम इश्यूज दैट वर टू बी टेकन अबाउट फिल्म स्टार्स इन जनरल एंड फोकस्ड ऑन हीरोज फ्रॉम अदर फील्ड्स. अबाउट फिल्म स्टार्स इन जनरल एंड फोकस्ड ऑन हीरोज फ्रॉम अदर फील्ड्स, मतलब सपोज करो क्रिकेटर्स या कहीं और से भी उन्होंने ले लिया था टॉपिक्स को, बट फिल्म स्टार्स की बात की गई थी. सेवरल कैंडिडेट्स कंफ्यूज रोल मॉडल एंड यूज्ड फिल्म स्टार्स एंड फिल्म्स इंटरचेंजेबली, राइटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ फिल्म्स. बल्कि पूछा गया था फिल्म स्टार्स के बारे में, पूछा गया था वो अच्छे कपड़े पहनते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे. ओके, वो ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम भी वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग फिल्म स्टार्स एज गुड रोल मॉडल्स. ओके, तो ये डिफरेंस आ गया था. बाय अच्छा, वाइल राइटिंग द ऐसे ऑल्सो यू मे इट इज़ पॉसिबल कि पर्सन जो है वो स्वे हो जाता है, बट अगर ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो ऑब्वियसली द पर्सन हैज़ गॉन इन टू सम अदर, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा, इसलिए ये बताया गया है. सम गेव एम्बिगुअस और रेपिटेटिव पॉइंट्स वाइल अदर्स फेल टू स्टेट स्टांस क्लियरली. कि अगर आप ये भी बता रहे हो कि हाँ दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट, तो वो बहुत क्लियरली मेंशन करो. Some candidates attempted this question, performed well. ठीक है. 4 valid points were to be given and many explored the concept of एक मिनट, हाँ, many were attempting the concept of friendship and its nuances. Few candidates refer to the comprehension passage as trust. ये this is I guess some other point, friends na, this is what I was saying. Okay, so the next question that says that friendship, that is the 4th one. ठीक, friendship, that is the one word topic, and the next one that is reflective. दोनों, जिसको हम दोनों को साथ में ही करेंगे. that is about the reflective, मतलब ये वो वाला टॉपिक है जिसमें आपने जितने भी कोटेशंस लिखी है वो आप चिंतन करना, इज़ नोन एज रिफ्लेक्शंस. तो आप सोचना, उसके विचार करना उसके ऊपर. ठीक है. तो वी आर टेकिंग हियर द नेक्स्ट वन. ये आपका फ्रेंडशिप वाला टॉपिक है जिसमें नंबरिंग नहीं की गई है. तो any 4 valid points were supposed to be given. Many explored the concept of friendship and its nuances, goods, bads, everything were supposed to be taken. Few candidates referred comprehension passage and incorporated its ideas on friendship and trust. ठीक है. कुछ लोग जो थे वो comprehension passage तक पहुंच गए थे और उन्होंने उसके रिलेटेड चीज़ें बता दी थी. तो it should be very original that you should understand. फिर नेक्स्ट इज दिस वॉज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन दैट इज़ रिफ्लेक्टिव. कि अगर एक स्टेटमेंट दी हुई है तो क्लोथ्स कैन डिफाइन अ पर्सन. द स्टेटमेंट हेयर सेज दैट क्लोथ्स डिफाइन अ पर्सन. आप उसकी अच्छाई बुराई हर चीज़ बता सकते हो जैसे उसमें दी गई है. ठीक है. तो जब वन वर्ड टॉपिक दिया जाता है तो उसमें इट इज़ कनेक्टेड टू द वर्ड फ्रेंड और फ्रेंडशिप, सब कुछ चलेगा. स्टोरी इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. उसका प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, लॉजिकल कंक्लूजन, कनेक्शन टू द टॉपिक, ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर. द कंक्लूजन मस्ट मे बी ओपन एंडेड और क्लिफ हैंगर और अ ड्रीम. कुछ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो. दिस इज़ अ वन वर्ड टॉपिक एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीथिंग. फिर नेक्स्ट वन वॉज रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव वॉज क्लोथ्स मस्ट डिफाइन अ पर्सन. ठीक, कि अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनेगा.
तो कैंडिडेट्स वर सपोज टू राइट देयर व्यूज ऑन द गिवन टॉपिक and by giving examples also they can take for or against or even sit on a fence कि आप उसकी अच्छाई बुराई दोनों ही बता सकते हो साथ में. 4 ideas were supposed to be required and composition must focus on clothes and a person. clothes और जो person है उसके ऊपर दोनों को ही चीज़ों को फोकस करना चाहिए. ठीक है, ये था उसके composition के बारे में. दिस आई एम टेलिंग यू सो दैट जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको समझ में आए. देखो, एक ऐसे राइटिंग में अभी हम लोगों ने 3-4 जो भी पढ़े उसमें आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि द वट एवर टॉपिक्स यू विल टेक उसमें कम से कम आपको 4 सॉलिड पॉइंट्स तो देने ही देने हैं. ठीक है, दे स्ट्रगल्ड टू प्रेजेंट मीनिंगफुल रिफ्लेक्शंस शोइंग लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्लोथ्स कैन डिफाइन अ पर्सन. तो ये भी स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स वर ऑफन वेरी वीक और इरेलीवेंट लीडिंग टू लॉस ऑफ मार्क्स. इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करो यू शुड बी ग्रेट एट दैट ऐसे. कीप योर हार्ट इन टू दैट कॉपी कि एग्जामिनर पढ़े उसको मज़ा आ जाए. ठीक है, some candidates digressed into the history of clothing and its evolution that was not required here, which was not relevant to the question. ठीक, अब next is the last one. हाँ, that is the point of story writing. ठीक है, story writing in which write a original story which ends. काइंडली रिमेंबर कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो वो एज इट इज़ लाइन से होगी. ही स्टूड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. तो यहाँ पर आप किसी पर्सन की भी बात कर सकते हो. ठीक है, कोई भी इसमें स्टोरी आप ऐड ऑन कर सकते हो. तो अब स्टोरी के कुछ स्पेसिफिक लाइंस देख लो इसमें. द काउंसिल सेज दैट एज इट इज़ वर्ड्स होने चाहिए एंड मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. Plot, setting, characters. The story must lead to the concluding sentences given in the question. तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए. ओके, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके होने चाहिए स्टोरी में. फिर उसमें बताया गया है कि काउंसिल के क्या उनके कमेंट्स हैं द एग्जामिनर्स के, व्हाट दे वांट इन देयर ओन ऐसे. तो the many candidates attempted it, only few could meet the requirement. प्लॉट हो गया, उनके कैरेक्टर्स हो गए, सेटिंग आपको पता होना चाहिए. एग्जामिनर रीड करो उसे ये समझना अच्छा ये स्टोरी है, ये यहाँ पर ये हाउस में हुई है या किसी गार्डन एरिया की है, वेयर इज़ दैट गोइंग ऑन. एंड देन लॉजिकल कोहेरेंस कि जो भी पूरा प्लॉट समझा रहे हो वो पूरा एक साथ ऑर्डर में चले. सम फेल टू एंड विद द स्टोरी विद अ गिवन रूब्रिक ऑफ वर्ड्स. एक स्टेटमेंट दी गई थी आपको एज इट इज़ वैसे ही एंड करना था. अदर्स रोट स्टोरीज जो क्लोजिंग सेंटेंस से रिलेटेड नहीं थी. असेंशियल वर्ड्स वर रिमूव्ड. ठीक, और कहीं पर तो प्लेगरिज्म था, कोई पुरानी स्टोरी ड्रामा कुछ भी पढ़ा है उसी को उठा करके यहाँ पर चिपका दिया. दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. मार्क्स यहीं पर ही जाते हैं. अ फ्यू कैंडिडेट्स ट्रीटेड इट एज अ नैरेटिव ऐसे. तो उन्होंने एक ऑर्डर में अपने ही बारे में लिख दिया. मैनी स्टोरीज लैक्ड क्लियर प्लॉट्स, प्रॉपर सेटिंग्स, डिफाइंड कैरेक्टर्स, विद द मोस्ट कॉमन एरर बीइंग द एब्सेंस ऑफ लॉजिकल लिंक विद द क्लोजिंग सेंटेंस. कीवर्ड जैसे कि ही, शी, विंडो, स्माइल, दे वर फ्रीक्वेंटली मिसिंग. तो ये चीज़ें हटा ही दी गई थी. ओके, तो दिस शुड नॉट बी डन. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जिसमें फर्स्ट वन वाज फीचर आर्टिकल. ठीक है, फीचर आर्टिकल एंड इसके ही कमेंट्स वी विल स्टडी राइट नाउ. ओके, feature article in about 300 words to be published. You have to tell the importance of sports. ये बहुत ही आसान सा टॉपिक इस बार आपको मिला था जिसमें the keywords were given, the outlines, guidelines were given. You have to tell कि importance of sports क्या होती है and एक article आपको mention करना था that was supposed to be in the school magazine 300 words में. ठीक, it builds teamwork, health benefits, develops leadership qualities, leads to character building and provide career option.
तो जब डायरेक्टेड राइटिंग का एक वीडियो आपने देखा होगा आईएससी इंग्लिश लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में, जिसमें अभी रिसेंटली ही काउंसिल ने जितने भी आपके सिलेबस के डायरेक्टेड राइटिंग्स हैं फॉर एनी ऑफ दीज, स्पीच राइटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक, तो उनके उन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट्स भी दिए हैं जो अभी तक नहीं दिए थे. प्लीज़ एडयर टू दोज फॉर्मेट्स, उसी से ही आपको मार्क्स मिलेंगे और उसी से ही आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे. ठीक है, तो दे हैव जस्ट टोल्ड हेयर दैट दिस इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ एम्पलीफिकेशन. आपको उसको मतलब डिटेल्ड में बताना है. ऑल द पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड एंड एम्पलीफाइड, एक्सप्लेन्ड वेल, एंड कंटेंट एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी, दैट इज़ द लैंग्वेज एबिलिटी, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कि वेयर द मार्क्स मे नॉट गो. The comments that says कि some candidates struggle to elaborate the topic, inculcating discipline. तो हमें पता चल गया है कि स्पोर्ट्स लेकर के आएगा, कैसे लेकर आएगा, you have to mention those which was often omitted. may not fully grasp the idea of character building, कि आप एक बहुत well focused person हो जाते हो, ठीक है, you do not go into any wrong side of the nature, वो आप नहीं जाते हो. Few candidates wrote generally on the importance of sports and focusing on expanding the specific points provided. जो points दिए गए हैं उनको छोड़ के दुनिया भर की कहानी उसमें importance में लिख दी. तो these things are not allowed and this is where you people lose marks. तो you should not. होगा भी ऐसा. अभी अगर if you will read this now, you will, आप अभी भी अगर सुन रहे हो इसे, तो you will understand कि कुछ ऐसी गलतियाँ तो मैंने भी की हैं. ठीक है, तो दिस यू शुड नॉट. अभी अगर आपके सेकेंड प्री बोर्ड्स या जनवरी में कोई एग्जाम्स होंगे आपके अपार्ट फ्रॉम योर फाइनल्स, तो यू शुड वर्क ऑन दिस. आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम. ओके, तो यू टेलीग्राम डीवा क्लासेस, द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज़ इट्स लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. एंड वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्पेसिमेन पेपर्स, सब कुछ वहीं पर ही मिल जाएगा. ओके, you are the president of the nature club of your school. This is the proposal writing, and you want to organize tree plantation to celebrate the 10th anniversary, ठीक, of your school. Write a proposal in about 150 words stating the steps you would take to organize the program and to make it a success. अब proposal में क्या होता है कि इसमें कुछ specific format council ने already दिया हुआ है. हेडिंग एंड ऑब्जेक्टिव इज देयर. हेडिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, इसमें 2 मिनिमम, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेडिंग. मतलब इसमें जो पॉइंट आप लिखोगे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यू आर गोइंग टू मेंशन कि हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग द पीपल हु द रेसिपिएंट्स ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट. 2 distinct reasons must be written separate from the heading. List of measures will not be accepted as objectives. Okay, list of measures आपको ये बताना होता है कि आपको मतलब there should be at least 4 in number. ठीक, coherent plan of action, कैसे उसे करोगे, कहाँ पर होगा, कब होगा, who is going to, क्या होगा, who, कौन करेगा उसे और कैसे करोगे. ठीक, these things supposed to be mentioned. Conclusion to be mentioned. We propose or we hope that it will be a successful event. And linguistic ability, the marks will be deducted on the level of your English that you use, the sentence that you frame, the grammar plus the punctuations. Okay, format, managed to score full marks. जिन्होंने strict adherence to the format रखा था उनको पूरे marks मिले. फिर candidates were supposed to write these things. However, जहाँ से शुरू हो रहा है however से, some candidates included only 1 point in the introduction. You should not do that. Maximum 2, resulting in deduction. Others mistakenly interchanged ये list of measures और objectives को ऊपर नीचे कर दिया. ठीक, नेम ही गलत कर दिया. Candidates followed an entirely different format using headers, benefits as subheadings, which deviated from the expected structure. जो structure आपको दिया गया आपको वही लिखना है. Okay, I don't know from where these things are being learned. Use of incomplete sentence, single words, phrases instead of well structured points also resulted in loss. So अगर आप कोई एक
place later, date, venue. No, don't write that. It should be a complete sentence. Okay, then next after this, तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. अब आता है आपका जो नेक्स्ट है, दैट इज़ अ फंक्शनल ग्रामर. तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रामर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज कोई इसमें एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लोगे तो एटलीस्ट यू विल बी मोर इन टू प्रैक्टिस ऑफ दिस. तो सबसे पहले आता है, एज सून एज मीरा फाउंड हर लॉस्ट डायमंड पेंडेंट शी रैन टू हर मदर इन एक्साइटमेंट. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की एक चीज़ तो आपको पता होगी, दैट वट एवर यू विल राइट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज. ठीक, एज सून एज मीरा फाउंड हर लॉस्ट डायमंड पेंडेंट, नो सूनर डिड मीरा फाइंड. डिड के साथ डिड, डज, डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, मतलब कि डिड प्ले, प्लेड नहीं. नो सूनर डिड मीरा फाइंड हर लॉस्ट डायमंड पेंडेंट, ओके, sorry, comma will not be there, then she ran to her mother in excitement. Then next, the doctor said to the elderly lady, will you be able to follow the schedule for taking medicines every day? Okay, so this was asked. So this is direct. Indirect meant has to be done. The doctor asked the elderly lady. ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? विल यू बी, कैन यू, डिड यू, आर यू. दीज आर द क्वेश्चन जिसके आंसर या तो हम हाँ में देंगे या तो ना में देंगे. डिड यू हैव योर लंच? येस, नो. ठीक, तो द डॉक्टर, ये येस नो क्वेश्चंस होते हैं. तो डिड यू, अच्छा जैसे एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर आस्क्स द पेशेंट वेयर यू आर गोइंग, तो उसमें हाँ ना थोड़ी ना वो बोलेगा, उसमें ही इज़ गोइंग टू टेल द प्लेस जहाँ पर वो जा रहा है. ठीक है, डिफरेंस समझो. तो द डॉक्टर आस्क्स द एल्डरली लेडी इफ, जब वेन एवर इट इज़ अ येस नो क्वेश्चन, इफ और वेदर कैन बी यूज, तो आई एम यूजिंग वेदर. इफ यू विल बी एबल टू, इफ शी वुड बी, विल कहीं तो जाएगा, इफ शी वुड बी एबल टू फॉलो द शेड्यूल फॉर टेकिंग द मेडिसिन एवरी डे, वो पूरा है एज इट इज़ है. Heavy rains have caused several landslides. ये some sort of repeated question है. अगर आपने past years के transformations किए होंगे तो ये as it is भी हो सकता है, because floods वाला एक question आया था, I remember. Heavy rains have caused several landslides. So have will change into have been when it is active passive. Heavy rains have caused several landslides. So it will start as several landslides have been caused by heavy rains. Sunita is the best debater in our team as it is. This question has been taken as it is, नाम भी नहीं change हुआ है. Okay, Sunita is the best previous year paper से. Sunita is the best debater in our team. No other debater in our team, positive में इसको change करना है. Team is as good as Sunita. Okay, then the news is too good to be true. Again it is a repeated, as it is repeated sentence. The news is so good, too good to be true. The news is, I'm writing here, the news is so good that it cannot be true. Okay, अब next question, the incorrect sentences, we'll solve it और उसके बाद we'll read the एनालिसिस ऑल्सो कि क्या चीज़ें इसमें आपको नहीं करनी चाहिए. भाई काउंसिल सीधे सीधे आपसे बोलता है फंक्शनल ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करो, होगा सब गलत या सही, ठीक है, बट इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन हाउ मच यू प्रैक्टिस. नेवर पुट out until tomorrow what you can do today. So it will be never put off.
until tomorrow what you can do today. Put buy your best dress, no, put on your best dress. Put on and put off. ठीक. Then she is so friendly that she gets along. Gets along या gets on दोनों ही आंसर की में दिए हुए हैं. I must get down. Down और get back दोनों चीज़ें हैं इसमें. और back to writing assignments as it is due tomorrow. I also have to check the bundles of the paper. The engagement was called off. Cancel हो रहा है. Called at the last moment, called off the last moment. The situation calls about necessary action, calls for necessary action. Statement पढ़ोगे you will be able to understand कि where what changes you have to do. Then some person choose to stand up her friend, no, stand by or with her friend in times of crisis. IPL stands for, ये तो आसान है. Neha turned out the job offer. Neha turned down the job offer क्योंकि वो अपने हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाह रही थी, इसलिए turn down means to cancel. हटा देना. I did not expect so many people to turn up for the conference. Turn up मतलब to be present. Okay, then next question. Once upon a time there lived. Past tense में जब once upon है मतलब past tense है. इसमें तो you all score a lot of marks, I know. Once upon a time there lived 3 old monks. They were poor and without any worldly goods. They would travel from village to village, and in every village they stopped, past tense again. ठीक है, and they would sit in the center of the marketplace and start laughing. At first everyone just passed by without giving them any attention, but slowly a small crowd formed and that would linger around every day and laugh with them. The laughter was so addictive that eventually the whole marketplace had tears running down their cheeks. This was when monks finally get up and moved. Wait, fifth one, na? It will be move. It will not be moved. Finally get up and move on to the next village. Their fame grew, past tense. यहाँ पर it will not be क्योंकि यहाँ पर ये भी present में तो ये भी present में होगा. ठीक है, statement you will read it, you will understand. Nobody ever preached the way they did with laughter and nothing else. They never laughed at anything in particular, but it was as if they understood, past tense again, understood or had understood, both will do. And एक और भी किसी में था, preached and had preached, both will do. They understood a cosmic joke. Just imagine, अब ये past tense नहीं है, ठीक है, exclamation है, उसको समझना. Just imagine 3 monks spread और spreading, ed नहीं लगता है spread में, spread और spreading joy and laughter without saying a single word. Okay, तो this we have done. अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जो comments of the examiner है that we will take marking scheme, this we have already discussed. अब सबसे पहले आता है इसमें the statements no sooner. ठीक है, whenever it is no sooner तो the statements देखो spellings may be wrong. no sooner के साथ did और than लगता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. then direct indirect पूछा गया है, तो whether और if should be wrong and whether की spelling is also wrong. ये तो एकदम ही. additionally some replaced each day every day with each day. पूरा statement as it is रखना होता है, हम लोग को changes उसमें नहीं करने होते हैं. okay. Several landslides caused heavy rains which changed the original meaning. That should not be changed. अगर have है तो have been होगा, that's it. उससे ज़्यादा हम उसको changes नहीं करेंगे जब ये passive में जाता है. ठीक है. You want me to explain you specifically, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने विद रूल्स भी किए हैं,
स्पेसिफिकली आई हैव टेकन कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिव पैसिव है. इफ़ यू हैव नॉट फाउंड दोज वीडियोज़, आप ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में भी वो होगा. ट्रांसफॉर्मेशन के देयर आर मल्टीपल videos that you can find on my channel. Candidates had to change the sentence from no other. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन बेटर, जब आप पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर एडजेक्टिव्स के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के, दैट आर सपोज टू बी फॉलोड. देन लास्ट, सो दैट, और वट वॉज देयर कि दे वर अनफेमिलियर विद द स्ट्रक्चर, सो दैट वाला, तो इसलिए दे लॉस्ट मार्क्स. Then second one, many candidates wrote multiple answers for a single blank or listed responses in the wrong sequence. ठीक, many answered correctly, few candidates randomly filled in the blank with unrelated words resulting in marks deduction. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. There was relatively scoring section but with most candidates securing at least half of the allotted marks. अगर 5 मार्क्स का है तो 2.5, और अगर 10 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स मिल जा रहे थे उसमें. देन लास्ट वन, अब ये सबसे ईजी सेक्शन होता है, बस हाँ उनको कुछ मिस्टेक्स थी जो इसमें मिली थी, ये जो मिक्सड टेंस एक्सरसाइज होती है टेंस वाली उसकी. ठीक, तो स्प्रेडेड वर्ड वॉज बीइंग यूज्ड, फ्यू ने क्या किया, सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया जिसके कारण डिडक्शंस हो गए. अब आता है लास्ट, कॉम्प्रीहेंशन. नाउ कॉम्प्रीहेंशन वी विल नॉट टेक एज लाइक, मतलब पूरा भी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट अवेयर. हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर सॉल्व करें, देन ऑल्सो इट विल टेक टाइम फॉर अस टू. तो व्हाट आई विल डू, प्लीज़ फॉलो द टेलीग्राम. हम आपको कुछ कॉम्प्रीहेंशंस देंगे एंड इन अ डे और 2 वी विल बी डूइंग अ सॉल्यूशन ऑफ दैट. आपके अगर इफ़ यू विल फॉलो दैट, तो व्हाट विल हैपन, आप एटलीस्ट कहीं से तो यू विल फाइंड दोज सॉल्यूशंस ना. तो एक बार के लिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज समथिंग, मैंने बोला ना 100 मार्क्स, मे बी यू आर गेटिंग 50, 60, 70 इन द लाइक प्री बोर्ड्स, तो हो सकता है कि वो 70 तक वाले भी 80 on 80 पा जाएं. 80 on 80 मीन्स इन प्री बोर्ड्स मीन्स 100 on 100 देयर. ठीक है, पॉसिबली येस. ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि व्हाट थिंग्स वी आर सपोज टू सॉल्व हियर. सबसे पहले फाइंड अ सिंगल वर्ड. ना यहाँ पर क्या है, आपको मीनिंग दी हुई है इसकी. ठीक है, सडन एंड वायलेंट चेंजेस, कम्स डाउन, एस्केप्स, तो ये जो अंडरलाइंड है ये मीनिंग है, आपको इसका एज इट इज़ वर्ड ढूंढना है इसमें. देन नेक्स्ट इज, अब यू हैव टू फाइंड द सेम वर्ड. ऐसा ही एक सेम, ये एक सेम वर्ड है, लाइन 2 पे दिया हुआ है एंड इसकी मीनिंग वहाँ पर कुछ और है. यू हैव टू फाइंड द सेम वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग हेयर एंड दैट यू हैव टू चूज हेयर. ठीक है, जैसे स्टेप्स और स्टेप्स हो गया, मतलब कि देयर कैन बी फुट स्टेप्स ऑल्सो एंड देयर कैन बी द स्टेप्स ऑफ द लाइक सीक्वेंस ऑल्सो. तो ऐसे ऑल्सो, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, ऐसे करके भी द डिफरेंस कैन बी टेकन अप. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स वाला, जिसमें समवेयर इट कैन बी रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस. कहीं पर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, कहीं पर वाई इज़ दिस प्लेस कंसिडर्ड एज अ रिमोट प्लेस, तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नेक्स्ट आफ्टर दैट इज़ प्रेसी राइटिंग. ठीक है, 100 वर्ड्स में ग्रिड फॉर्म में आपको ये मेंशन करना है, जैसे 5x20 का आप ग्रिड फॉर्म करोगे और उसमें यू विल मेंशन ऑल दीज थिंग्स जो भी उनसे पूछी गई हैं. अब इसका सॉल्यूशन वी विल नॉट टेक एज ऑफ नाउ, वी विल ओनली बी टेक कि क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं. देखो सबसे पहले वाला, ओके, the first one says that they were not able to identify the words. Okay, additionally some candidates used incorrect form of the required words. कुछ जो है turbulence, elude, subsides की जो करेक्ट मीनिंग है वो नहीं ढूंढ पाए थे. देन नेक्स्ट वन, तो मतलब वो एक्चुअली मीनिंग्स वर गिवन, वो वर्ड्स नहीं ढूंढ पाए थे. ओके, इसके बाद द नेक्स्ट वन, they were finding mistakes in choosing the correct options. Most of the students did not seem to have any idea about what was expected of them, कि उनसे क्या पूछा जा रहा है.
इट वॉज टोल्ड कि इट शुड बी अनचेंज्ड इन फॉर्म बट इट शुड बी विद ड सेम मीनिंग. सपोज करो कि कोई वर्ड लिखा है स्टेप्स, तो ये एज इट इज़ पूछा जाएगा, एज इट इज़. स्टेपिंग नहीं होगा, स्टेप्ड नहीं होगा, ईडी नहीं होगा, नहीं. आपको स्टेप्स वाले ही एक वर्ड उससे चूज करना है ऑप्शन से विद अ सेपरेट मीनिंग. ओके, देन इस क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड. अब क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड की एक चीज़ आप समझो कि जो एंटायर पैराग्राफ्स हैं फ्रॉम द पैसेज दैट शुड नॉट बी डन बिकॉज इट विल लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स. देखो इसको हाईलाइट कर लो यहाँ पर. ओके, सेकेंड वॉज ऑल्सो हाई ऑर्डर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स बतानी है. ठीक, द थर्ड वन ये क्वेश्चन आंसर्स वाला है, 2-2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो. अब इसके बाद आता है द प्रेसी राइटिंग. ठीक है, प्रेसी राइटिंग आपसे कहता है दैट यू हैव टू लिस्ट 8 पॉइंट्स अबाउट द पर्सन. ठीक है, वट एवर इज आस्क्ड. मोस्ट कैंडिडेट्स वर अनेबल टू लिस्ट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स. सम डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. रेफर टू द पैसेजेस. 8 to 14 तक बताना था, वो कहीं ऊपर 7 से बता दिए, कहीं उसके बाद बता दिए, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. वेरी फ्यू कैंडिडेट्स मेट द 100 word रिक्वायरमेंट with writing only 50 words, with some writing only 50 words. ठीक है, कुछ थे जो 100 words की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको 100 ही रखो. डू नॉट इन अबाउट भी लिखा है तो भी उसको 100 रखो. Many linguistic errors were observed, including first person narration. Incorrect tenses were also there. Few candidates assembled words in a way that they lacked coherence, making their precis difficult to understand. कि वो उस चीज़ को लॉजिकल समरी के फॉर्म में वो बता नहीं पा रहे थे. तो दीज क्वेश्चन थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन. अब सजेशंस वील डू लेटर. ठीक है, कुछ ये हम बता देते हैं जो आज आपने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग. वोकैबुलरी क्वेश्चन नंबर 1 में नैरेटिव में उनको प्रॉब्लम थी कि the like points only they missed. Short stories में original short story should be there. The relationship between the closing or the opening line, whatever is given, that should be there. Rewrite as directed. Errors, sentence transformation में बहुत errors मिले उन्हें. ठीक है, जो कैंडिडेट्स को, जो काउंसिल को लगा कि हाँ ये टॉपिक्स है जिसमें बहुत मिस्टेक्स निकल रही हैं. वोकैबुलरी, इन्फेरेंशियल क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चंस फॉर्म करते हो उसमें भी बहुत इश्यूज थे. एंड समरी राइटिंग, ग्रिड फॉर्मेट ना फॉलो करना, इररेलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर देना, वर्ड लिमिट से एक्सीड कर देना, या फिर गिवन पैराग्राफ से इधर उधर भाग जाना. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट. अब ये चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फोकस करनी है इफ़ यू हैव एनी एग्जाम्स इन जनवरी, और इफ़ यू हैव योर एग्ज़ाम नेक्स्ट डे, और इफ़ नॉट देन एकदम लास्ट में तो फाइनल्स में तो अच्छा ही करना. ओके, वन थिंग. सेकेंड थिंग, that if anything you want me to take up as a topic here, you can mention it in the comment box. ठीक, suggestions we'll be doing later, क्योंकि वो पहले आप इतना समझो कि what things you have to do. Candidates अगर किसी चीज़ में, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं. रिफ्लेक्टिव में कि जहाँ उनको स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आए थे, आर्ग्यूमेंटेटिव है तो उसमें क्लियर स्टांस रखो, मॉडरेट व्यूज़ मत रखो, बोथ साइड्स मत आर्ग्यूमेंट दो. प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मीन्स द एग्जाम्पल्स शुड ऑल्सो बी देयर. शॉर्ट स्टोरी में एलिमेंट्स टू बी नोन बताया था मैंने, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, लॉजिकल एंडिंग. ठीक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में रूल्स शुड बी नोन, प्रैक्टिस शुड बी टेकन अप. कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 मिनट मिलते हैं तो उसमें उसको 2 बार रीड किया करो. वोकैबुलरी एंड क्वेश्चन आंसर सेक्शन में करेक्ट वर्ड्स ना ढूंढ पाना, आंसर ना कर पाना सही से, या फिर प्रेसी राइटिंग में इश्यूज होना. तो दीज वर द थिंग्स दैट स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज्ड इन. ठीक, तो वर्क ऑन इट, कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेज़, थैंक यू.